Hey dear friends, how are you all? Welcome back to my channel, The Achievers Education, and my name is Ritesh. So today we'll be talking about the central-state relations which were left out in the previous module, and we'll be completing that particular topic here right away. So what is the meaning of central-state relation, which was turning out to be a factor that how we were able to practice federalism in our country? कैसे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप अच्छे रखने के कारण हमारे कंट्री में फेडरलिज्म जो है वो भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होने लगा. दैट वी हैव टू सी इट राइट अवे. लेट अस सी. आई विल बी रीडिंग डाउन दिस सम few points which are there exactly from the textbook, and we need to definitely go how the textbook is going on, right. So we have to work out in that in direction, because this particular topics which are there, they are very big topics, right, and which has a vast explanation. But then in textbook we had made it quite less, and then let us see how is it working. So restructuring the center state relation is one more way in which federalism arrangement has been strengthened in practice. How the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent of how ruling parties and leaders follow this arrangement. Okay, इसका मतलब ये है कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप तुम्हारे कंट्री के अच्छे होने चाहिए, और सिर्फ अच्छे होना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके कंट्री के पॉलिटिशियंस जो हैं वो इन रिलेशंस को कितने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, कितने अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि सिंपली बाय हैविंग गुड रिलेशनशिप्स on face between the central government and the state government is not necessary. Okay, rather we should also be able to accept each other. Okay, हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा. वी हैव टू फॉलो द rules and regulations of each other, and we have to cooperate. Okay, so it is ultimately depending on the leaders. Okay, how our leaders are practicing this principle, how they are cooperating with the state government, isn't it? Okay, or how they are cooperating with the central government. Only then we can say that center state relationship can be good, and only then federalism can be also practiced. Second thing, for a long time the same party used to rule both at the center and in most of the states. This means that state government did not exercise their rights as autonomous federal units. See, until 1990 1990 तक ऐसा होता था कि सिर्फ कांग्रेस ही जो थी. ओके, ओनली कांग्रेस वाज द वन हु वाज अ मेजर पार्टी इन ऑल ओवर इंडिया. सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उनकी सरकार होती थी और स्टेट गवर्नमेंट में भी उनकी ही सरकार होती थी. एज अ रिजल्ट व्हाट यूज्ड टू हैपन, okay, the state governments which used to be there, okay, they used to not get उतना चांस नहीं मिलता था वो अपने खुद के पावर इस्तेमाल कर सके. because you see what used to happen, the central government will be always superior, right. so state government ने कोई बदलाव इंट्रोड्यूस किया, कोई चेंज इंट्रोड्यूस किया, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर यूज करके उन चेंजेस को, उन बदलाव को डिसमिस कर डालती थी, isn't it? so what was the point in having state government फिर अगर ऐसा है तो, isn't it? okay, so therefore ऐसा कई बार ऐसा होता था. but then what happened, जैसे जैसे समय चलता गया वैसे वैसे क्या होता गया, as and when ruling party at the state level was different, parties that ruled at the central government tried to undermine the power of the state. जैसे कि मैंने अभी कहा था कि जब भी कोई भी प्रकार की, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई स्टेट में दूसरे पर्टिकुलर पार्टी की एक गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म हुई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और पार्टी है, ओके, विच इज अ मेजोरिटी पार्टी. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई नया इनिशिएटिव लाते हैं, कोई नया रूल लाते हैं. कई बार ऐसा होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड टू pardon me, central government used to always always they used to chalk out this हमेशा वो उनकी बात नहीं मानते थे. ओके, कई बार उनके पावर्स को वो लोग डिसमिस कर डालते थे. ओके, सो व्हाट वाज द पॉइंट इन हैविंग स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, है कि नहीं? सो ऐसा था, ऐसा अगर ऐसे प्रकार की अगर डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ रूल अगर चलते रहा, सो व्हाट इज द पॉइंट इन हैविंग डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज द पॉइंट इन हैविंग फेडरलिज्म, इजंट इट? सो the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by the rival parties, है ना. let's say for example कांग्रेस एक प्रकार की राइवल पार्टी है as compared to the बीजेपी. अगर कोई फॉर एग्जांपल बीजेपी की एक गवर्नमेंट है सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में, और बाकी सारे स्टेट में हर जगह कांग्रेस की ही गवर्नमेंट है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल बीजेपी इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ लॉ फॉर इट्स ओन स्टेट, एंड आल्सो इफ द एंटायर कंट्री वांट्स टू कंसीडर, देन एवरीबॉडी आल्सो कैन कंसीडर.
Now what happens is, now because Congress is rival party of BJP, it will dismiss its laws and initiatives which was introduced by them by using the constitutional power. Okay, what constitutional power always uses that central government decision also will be always final on the subjects where both the central and the state governments are having the right to make laws, isn't it? I have in the previous modules I have taught you about the three lists. Okay, union list, state list, concurrent list और residuary list, ये सब मैंने आपको बताया था, है ना. सो कॉमन जो सारे कॉमन टॉपिक्स होते थे, ओके, जिसके ऊपर दोनों स्टेट दोनों जो गवर्नमेंट से लॉ बना सकते थे, वैसे प्रकार के सब्जेक्ट्स पे या टॉपिक्स पे कई बार ऐसा होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनका डिसीजन मानती नहीं थी और एंड दे यूज्ड टू डिसमिस देयर पावर्स, इजंट इट? ओके, डिसमिस देयर इनिशिएटिव्स. तो ऐसा कई बार होता था. दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और ऐसा करने के कारण कई बार फेडरलिज्म की जो स्पिरिट थी वो कई बार कम कर दी जाती थी, राइट? यस. देन लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. देन ओके, फिर ये सारे चीजें सिग्निफिकेंटली धीरे धीरे बदलने लगी. व्हाट वर द चेंजेस व्हिच वर ब्रॉट? ऑल दीज चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990. This period saw a rise of regional political parties in many states of the country. This was also the beginning of the era of coalition government at the center. देखो क्या होने लगा था, बिकॉज क्योंकि एक ही पार्टी हमेशा रूल कर रही थी, सो उसके कारण व्हाट हैपेंड, बिकॉज ऑफ दैट सेवरल स्मॉल पार्टीज स्टार्टेड कमिंग अप इन देयर डिफरेंट रीजन्स. जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना का जन्म हुआ, ओके, एंड देयर वर सो मेनी AIDMK, okay, in Tamil Nadu, okay, so there were so many different parties. Trinamool Congress West Bengal में, right? So different regional parties जो है अपने स्टेट्स में ग्रो होने लगी. एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि एक बार 1990 में सेंट्रल लेवल पे जब इलेक्शंस हुए थे, कोई भी एक गवर्नमेंट नहीं थी जिसकी पूरी की पूरी मेजोरिटी वहां पे आई थी. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म द गवर्नमेंट. ऐसे में बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि सरकार कैसे बनाया जाए. एंड दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द इरा ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट. कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई एक से ज्यादा गवर्नमेंट जब when they come together and form the government, that is called as coalition form of government. Because you see, let's say for example कोई एक there are 100 सीट, 100 सीटें हैं, ओके. अब 100 सीट में 30 सीट पार्टी नंबर 30 सीट पार्टी नंबर A को मिलती है, 30 सीट पार्टी नंबर B को मिलती है, 30 सीट पार्टी नंबर C को मिलती है और 10 सीट पार्टी नंबर D को मिलती है. इनमें से कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना सकता क्योंकि किसी भी की मेजोरिटी नहीं है. मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? 50% से ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स हमको जीत के आना है. तो ना ए बना सकती, ना पार्टी नंबर ए बना सकती है गवर्नमेंट, ना पार्टी नंबर बी बना सकती है गवर्नमेंट, ना पार्टी नंबर सी बना सकती है और पार्टी नंबर डी तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती, isn't it? Therefore either of the parties have to shake their hands, isn't it? इन दोनों को इन किसी ना किसी पार्टी को अपने को उन लोगों को अपने साथ में मिलाना पड़ेगा, ओके. ओनली देन दे कैन क्रॉस द टारगेट ऑफ 50 सीट्स एंड देन दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट. सेम थिंग हैपेंड ड्यूरिंग द 1990s इलेक्शन, ओके. यही चीज हुई थी कि कोई भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी. एज अ रिजल्ट कोएलिशन गवर्नमेंट बनना शुरू हुआ था सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे, राइट, ओके. सो वो चीजें हुई थी. देन सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू अलायंस. अलायंस का मतलब गठबंधन, ओके. Get into an alliance with many parties including several regional parties to form a government at the center. और उनको गठबंधन करना पड़ा और they had to come together, they had to do an alliance with the local parties and then they have to make the government at the center. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of the state governments, okay. और इस चीज के कारण एक प्रकार की अलग ही टाइप की रिस्पेक्ट डेवलप होने लगी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी, ओके. That made it difficult for the central government to dismiss the state governments in an arbitrary manner. जब ये चीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे होने लगी, धीरे धीरे ये सेम चीज जो है स्टेट गवर्नमेंट पे या स्टेट लेवल पे भी होने लगी, ओके. एज अ रिजल्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा से जो पावर डिसमिस करते आ रही थी स्टेट गवर्नमेंट्स की, वो अभी बंद होने लग गया था, ओके. Thus फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में तब तो फिर
फेडरलिज्म के जो पावर्स थे वो और स्ट्रांग हो गए और कई अच्छे तरीके से हम लोगों ने एनफोर्स करना शुरू कर दिया. नाउ डेज वी हैव गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल आल्सो. ओके, इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड to the one state level only. Okay, in fact nowadays we also have governments at the local levels, which you will be studying in the coming module, right? Yeah, coalition governments explanation I am giving you. Coalition government, a government formed by the coming together of at least two political parties, usually partners in a coalition form of political alliance, and usually partners in a coalition form of a political alliance and adopt a common program. Okay, so ये जो parties जो है जब ये साथ में आती है, okay, जब साथ में आते हैं, they are adopting collective policies. Okay, they adopt common policies. Okay, वो दोनों जब साथ में आते हैं तो वो कुछ कॉमन पॉलिसीज के ऊपर वो लोग हाँ बोलते हैं और उस तरीके से वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं जिसमें एटलीस्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक साथ आके जब गवर्नमेंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दिस पिक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल which shows that, see, this is the chair of ruling the people. Okay, and see this chair is made out of different parties. Okay, और ये different parties nothing but the bomb. Okay, है ना, अगर इनमें से एक भी पार्टी को अगर बॉम्ब लग जाता है या आग लग जाती है, द एंटायर चेयर विल बी रिमूव्ड, इजंट इट, है ना, टूट जाएगी, राइट. सो वही है कि अगर एक पार्टी ने भी अपना सपोर्ट निकाल लिया तो गवर्नमेंट गिर जाएंगी, राइट. बस यही उसका बताने का उद्देश्य है. देन सिमिलरली हियर ऑल्सो 1917 तक कुछ इस प्रकार का सिनेरियो था. एक ही पर्टिकुलर पार्टी हमेशा रूल करता था और इनको रूल करने मिलता नहीं था. नाउ आफ्टर दैट इन 1919 यू कैन सी दैट देयर आर सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज हु आर कमिंग टुगेदर एंड फॉर्म्ड वन पर्टिकुलर गवर्नमेंट एंड द मेजॉरिटी पार्टी इज जस्ट लुकिंग अवे, isn't it? So ये प्रकार का सिनेरियो हो गया था. So thank you so much for watching the video. Do like, share, comment and subscribe to the channel. Please hit on the bell button, bell icon, so that you can keep on getting the regular updates of my videos. We'll be also preparing videos about economics and also of geography as well, which is going to come in the coming days. So thank you so much and have a good time. This is Ritesh Chandekar. See you until next time.